ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। एक 26 जनवरी अब है और एक पिछले साल थी। सर देखिए, ये सारी प्लानिंग का काम था। 26 जनवरी को जो भी हुआ सारी प्लानिंग के साथ काम किया गया था। देखो, किसानों से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अच्छी बात है तो कि उन्होंने कर लिया, मान लिया, लेकिन बहुत लेट माने हुए हैं वो। अगर मोदी साहब अगर मान जाए तो इतना किसानों के साथ ऐसा अत्याचार होता ही नहीं। किसान बिल जो आया था ये पहले ही वापस लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन बहुत देर की। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी। मैं उसका मेन जीत का जो मैं कहूँगा कि जो किसान आंदोलन में जीत हुई है वो राकेश टिकैत की हुई है। ये जो किसान मोर्चा है वो जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, समझे। जैसे मुस्लिम लीग के लिए एनआरसी काला कानून थी, वैसे ये इसके लिए काला कानून है किसान के लिए। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਭ? देखो सर, ये जो किसान मोर्चा है वो जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, समझे। जैसे मुस्लिम लीग के लिए एनआरसी काला कानून थी, वैसे ये इसके लिए काला कानून है किसान के लिए। इंसान तो खाएगा पिएगा ही भैया साहब। अगर वो किसान के लिए अगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को क्या, सरकार को सारी फैसिलिटी मिलती है वो पब्लिक की वजह से, ठीक है ना। और देखो दूसरी बात ये है कि ये चचा क्या बोल रहे थे फ्री पे। देखो, सरकार अगर फ्री कर रही है तो वो अच्छा कर रही है, ना कि वो गलत कर रही है। अगर वो कोई बच्चा, गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है तो उससे क्या होता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, किसी के घर का अच्छा होता है, ठीक ना भाई साहब। और ये सोच रहे हैं कि ये क्या बोले बीजेपी में से थे तो इनका सोच ही मानसिकता अलग हो जाती है, हिंदू मुस्लिम वाली मानसिकता हो जाती है। इनका कोई इलाज नहीं है भाई साहब। मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस चीज़ को फील करता हूँ। मैं बिहार से आया हूँ, नवादा ज़िले से आया हूँ, बिजनेस के पर्पज़ से 5% से टैक्स अभी 12% हो गया। तो भाई साहब हम पे जा रहा, मैं किन पे दूंगा? आप लोग मुझसे जूते चप्पल मैं आप पे जोड़ूंगा, ठीक है भाई साहब। तो ये सरकार की गलती है कि कुछ भी काम करते हैं एक तरह को गया मनमानी। ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਯੂਪੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो सर, मोर्चा बढ़ाना ज़रूरी था। अगर वो नहीं बढ़ता तो ये कानून वापस नहीं होता। और जो किसान शहीद हुए हैं वो काफ़ी अफसोस की बात है, वो अपने हित के लिए शहीद हुए हैं, ठीक है। अगर सरकार को ये चीज़ गलत लगता तो वो तुरंत वापस लेती। आज देखिए यूपी के इलेक्शन की वजह से वापस लो या किसी वजह से वापस लो, वो तो वापस लिए ही है भैया, समझे। और देखो ये सरकार की देखो नाकामी है, जो कुछ भी मनमानी कर देती है। नोटबंदी को देखे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, फिर जीएसटी बढ़ते जा रहा है, रिजल्ट देखो यार, रिजल्ट चाहिए, ठीक ना। अगर बच्चे को फ्री दे रहे हैं तो वो पढ़ाई भी दे रहे केजरीवाल, अगर वो फ्री दे पढ़ाई ना दे तो वो बेहतर नहीं होती है, समझ में है ना। मानसिकता की सोच होती है बड़े भाई, समझ में है ना, कि अगर किसान को भैया उसको वो कम खाता है, लेकिन अनाज ही खा के ना हम लोग काम करते हैं भाई साहब, और कुछ खा करके हवा पानी तो काम नहीं। तो हवा के लिए जीना ज़रूरी है। अगर ये हवा में भगवान बोल दे कि हम टैक्स लगाएंगे, ये करेंगे, तो पब्लिक बोलेगा यार तुम क्यों जिंदा किए हो मुझे, जब इतना टैक्स ही लगाना था बड़े भाई, समझ में आना। तो जब तुम इतना महंगाई बढ़ाओगे यार तो कहाँ से काम हो पाएगा बड़े भाई। किसान मोर्चा था जो वो सफल हुआ और जीत प्राप्त हुई किसानों की। एक 26 जनवरी अब है और एक पिछले साल थी, तो कैसे देखते हो सब? तो वो सही है, मतलब अब देखो कि मान लिया, सरकार ने भी मान लिया, अब तो सब एकजुट होना चाहिए। अब एकजुट, अब जैसे ये 26 जनवरी है, सब एकजुट होके चलाएं, मनाएं, बस अच्छा है। 26 जनवरी एक ये है और एक लास्ट ईयर थी 26 जनवरी पिछले साल थी जो। कैसे देखते हैं इन सबको? मतलब मोदी अब मोदी मान गए, मोदी ने माफ़ी भी मांगी है किसानों से और बिल वापस लिए हैं। देखो, किसानों से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अच्छी बात है तो कि उन्होंने कर लिया, मान लिया, लेकिन बहुत लेट माने हुए हैं। वो पहले ही मान जाते इतनी आगे नहीं बढ़ते किसान भी। किसानों की तरफ से आंदोलन ठीक था किसानों का, लेकिन जब तक इतना लेट कर दिया उन्होंने, पहले ही कर देते तो अच्छा रहता। हम किसानों की तरफ से सपोर्ट है, हम भी गांव के हैं, फरीदाबाद के, हरियाणा के हैं। आप आए थे? मैं नहीं आ पाया। आपके गांव से? हमारे गांव से बहुत लोग आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में आए हुए थे पहले। किसानों ने नई पार्टी बनाई है पंजाब में, अब इलेक्शन है, क्या कहेंगे उसके बारे में? इलेक्शन के बारे में क्या कहे जी, तख्ता पलटे वो तो। अच्छा। हाँ जी, कौन जीतेगा वहाँ पे? कह नहीं सकते जी, तख्ता पलटे कोई भी जीत सकता है। किसान जीत कर वापस चल गए हैं अपने घर। मोदी ने माफ़ी मांगी है। 26 जनवरी एक ये है, एक पिछले साल आई थी 26 जनवरी। आप यहीं थे? नहीं, मैं तो दिल्ली में था। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसे देखते हैं इसको? किसको जी? ये जो किसानों को जी, किसान का जी बढ़िया, बड़ी बहुत बहुत बढ़िया जीत हुई है। और किसानों ने इतना जो संघर्ष किया, बहुत बहुत बढ़िया जीत हुई है। और अगर मोदी साहब अगर मान जाए तो इतना किसानों के साथ ऐसा अत्याचार होता ही नहीं। मगर किसान कहते ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ किसान शहीदी भी प्राप्त की किसानों ने। बहुत संघर्ष किए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाए, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, इतनी तकलीफ उठाने के बाद और मोदी साहब माने तो मान गए। मगर गलती का एहसास तो हुआ उनको कि किसान सही है, किसान अपने रास्ते पे सही है। यूपी 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? अगर किसान के साथ में इतना अत्याचार करें हैं तो मुश्किल है, बीजेपी मुश्किल है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ। वहाँ तो सुनने में आ रहा है जी, आम आदमी आ रहा है जी। अच्छा। हाँ। जहाँ पर कैसे किया है कि अरविंद केजरीवाल ने? बहुत बढ़िया जी, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया किया जी। दिल्ली आज कोई ऐसा माने हम लोग रोजी रोटी सब में ठीक है जी, सुविधा उविधा, स्कूल का, हॉस्पिटल का, रोड का जी बहुत बढ़िया जी। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ जी नमस्कार। किसान जीत कर वापस चले गए हैं,
ठीक है 26 जनवरी है, एक पिछली 26 जनवरी थी, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी हुई है। ये जो किसान बिल जो आया था ये पहले ही वापस लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन बहुत देर की। और जब ये कानून बनी थी तो उसी टाइम विरोध हुई थी संसद में कि ये कानून वापस लिया जाए। तमाम विपक्ष के नेता सब जो है इसका विरोध भी किया था, लेकिन मोदी जी अपना हिटलर शाही के रूप में ये मतलब संसद में ये बिल पास किया। और इतने एक साल से तकरीबन ज़्यादा समय होने के बाद बहुत सारे किसान आत्महत्या भी किया। इतने बड़ी ठंडी गर्मी सब में किसान जो है डटे रहे। अंत में किसान को जीत हुई और मोदी जी को हार मानना पड़ा, माफ़ी मांगना पड़ा। ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? देखिए किसान जी आंदोलन के कारण तो ये उत्तर प्रदेश में तो इसका बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा ही। और सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनेगी और तमाम जो विपक्ष का नेता है। और कौन आऊगा फिर? अब दूसरा कोई मतलब सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि ये सरकार जो भी कानून बन रही है देश में कानून जो है मतलब अपना सरकार के दम पर संसद में जो है बना रहे हैं अपने दम पर। और बाद में जब गलत जब ठहरता है तो ये अपने आप माफ़ी भी मांगते हैं संसद में। तो मोदी सरकार सही नहीं चल रही है। बहुत महंगाई है, बेरोज़गारी है। और ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। प्राइवेटाइज हर विभाग हो रहा है, रेलवे हो या एयरपोर्ट ਪਰ हो। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ मोदी जी डिजिटल बना रहे हैं हर एक चीज़। कहाँ डिजिटल हुई है? कोई भी वादा किया था इन्होंने कि स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी रोड पर, कुछ ऐसा दिख रहा है? सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। या जियो मोबाइल रिचार्ज की बात करें, मोबाइल रिचार्ज की बात तो पहले जियो अंबानी जी ने पहले फ्री किया, उसके बाद रिचार्ज कराना स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे जो है अब 28 दिन से पहले 28 दिन था मंथली, अब 23 दिन पर आ गए। फिर भी महंगाई तो बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन मोदी जी के हाथ में देश अस्थिर नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨੇ, ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿन किसानों ने जित के दिखाया। फिर सर देखिए ये सारी प्लानिंग का काम था। 26 जनवरी को जो भी हुआ सारी प्लानिंग के साथ काम किया गया था, पर ये सारा असफल हो चुका था। राकेश टिकैत जो कि आखिरी तक खड़े रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो लोग छोड़कर भाग गए थे कि उन लोगों ने देखा कि हाँ पुलिस आएगी, सरकार का दबाव है ज़्यादा, सब लोग चले गए थे। सिर्फ राकेश टिकैत ही एक ऐसा बंदा था जो आखिरी तक खड़ा रहा और आखिरी में वही जीत कर रहे हैं। मैं उसका मेन जीत का जो मैं कहूँगा कि जो किसान आंदोलन में जीत हुई है वो राकेश टिकैत की हुई है। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭੰਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ, ਦਿੱਲੀ।